Good morning, students. In previous lecture we discussed about the preparation and the physical properties. In this module we discuss about the chemical properties. Chemical properties of haloalkanes and haloarenes. If we talk about the chemical properties, chemically these metals, these alkyl halides and aryl halides are more reactive towards the different reactions like nucleophilic, substitution reaction, next one electrophilic, next आपका आएगा that is elimination. Reactions. These different types of reactions we discuss in this alkyl halides, and another one is reaction with metals. So first we discuss here the nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution. In this reaction we can see that the nucleophile substitute in the place of that halogen. Halogen के प्लेस में हमने न्यूक्लियोफाइल लेके आना है, और न्यूक्लियोफाइल कैसा आएगा? जो स्ट्रॉन्ग होगा. That nucleophile attack on that alkyl halide which is more reactive, or we can say which is stronger, and it is having two types, SN1 and SN2. SN1 means nucleophilic substitution unimolecular, and SN2 is the nucleophilic substitution bimolecular reactions. In first we discuss here the nucleophilic bimolecular nucleophilic substitution reaction, that is SN2. SN2, that is nucleophilic substitution bimolecular. In this case I have taken example of methyl bromide. When the nucleophile OH is attacked on that, then the nucleophile attack on the opposite side of the bromide, and it will form the intermediate OH, C, H, 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 Br. But it is unstable. Why it is unstable? Because carbon never will form the more than 2 bonds, and in this case there is a 5 bonds. So it is unstable, and it can convert, it can release the bromine, and the product is formed like this, Br negative. This reaction takes place in a single step. You can see that the nucleophile attack on the opposite side of that particular alkyl halide, and it will form an intermediate, and that intermediate is unstable, and after that it can release bromine negative, and the final product is alcohol. And this reaction takes place in a single step. ये जो आपकी रिएक्शन हो रही है एक ही स्टेप में हो रही है,
लेकिन इसमें दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है. सो दैट इज द रीजन दैट इट्स रेट अगर दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा तो ये आपका बाइमोलिकुलर इसीलिए नाम. SN2 is bimolecular because its rate depends upon the concentration of both reactants. So that is the reason that it is known as bimolecular reaction. और अगर हम रेट की बात करें तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव. यह आपके पास रेट इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो इसीलिए इसको बाइमोलिकुलर हम बोलते हैं. अगर इसमें प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो यहाँ कांस्टेंट लगा देंगे. तो इस तरह से ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन शो करता है. अब इसमें हम अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें, reactivity order in SN2 mechanism. What is the reactivity order? Methyl halide is more reactive than the primary, then the secondary, and then the tertiary. This is primary, this is secondary, and this is tertiary. This is the reactivity order. Methyl halide is more reactive because there is no such bulky group is present which show the steric hindrance. इसका मतलब tertiary सबसे कम reactive क्यों है? देखो इसके लिए हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं कि why the tertiary alkyl halide is less reactive toward the SN2. I have taken the tertiary is the least reactive toward SN2 mechanism. When this nucleophile attack to the opposite side of that bromide, these bulky group, these big size group, they show the steric hindrance. ये क्या शो करेंगे? Steric hindrance शो करेंगे. And that is the reason that that nucleophile cannot react with that particular reagent because it show the steric hindrance, these alkyl group. So that is the reason that tertiary is least reactive toward SN2 mechanism. अब ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाएगा. देयर इज नो रिएक्शंस मींस इतना इजी नहीं है इसके लिए रिएक्ट करना. क्यों नहीं है इजी? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है, ये रिपेल कर रहा है, ये इसको आने नहीं दे रहा. कोई चीज अगर आएगी नहीं इसके पास तो वो बॉन्ड कैसे बनाएगी? तो ये पहले ही रोक रहे हैं इसको. क्यों? क्योंकि वो बड़े ग्रुप हैं और बड़े साइज के हैं. दे कैन स्टॉप दैट न्यूक्लियोफाइल टू अटैक ऑन दैट कार्बन एटम. सो दैट इज व्हाई द टर्शियरी alkyl halide is least reactive toward SN2 mechanism. On the other hand, if we talk about the SN1 mechanism में nucleophilic substitution unimolecular. यूनिमोलिकुलर की बात कर रहे हैं. यूनिमोलिकुलर में क्या होता है? सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन प्रोसीड होती है. व्हेन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, वी हैव टेकन द एग्जांपल टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, इट कैन फर्स्ट डिसोशिएट इनटू द कार्बोकेटायन. इट कैन हैव द heterolytical fission. It has the heterolytical fission. Heterolytical fission means both the electrons ये ब्रोमीन अपनी तरफ खींच लेगा इस बॉन्ड के,
और यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ चले गए, इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज, इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया टर्शियरी कार्बोकैटायन। दिस टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल ड्यू टू plus I effect and hyperconjugation। प्लस इफेक्ट एंड हाइपरकंजुगेशन की वजह से ये क्या है, टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट वही बनाएगा, जो अनस्टेबल होगा वो इजीली प्रोडक्ट नहीं बनाता। देन द टर्शियरी कार्बोकैटायन दे कैन अट्रैक्ट द न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड इटसेल्फ। न्यूक्लियोफाइल आपका कोई भी हमने यहाँ पर लिया न्यूक्लियोफाइल, ये इसको अपनी तरफ के साथ कार्बोकैटायन के साथ ये बॉन्डिंग कर लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और ये एक नया कंपाउंड बना लेगा जो आपके पास इस तरह से बनेगा। अब ये जो फर्स्ट स्टेप है इट इज द स्लो स्टेप एंड द सेकंड स्टेप इज फास्ट, एंड वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द स्लो स्टेप। सो द रेट किसके इक्वल है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टर्शियरी, दैट इज मैंने लिखा R3X जो आपके पास है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ये सिंगल रिएक्टेंट स्पीशीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर, और इसको हम SN1 से रिप्रेजेंट करते हैं। या अब टर्शियरी में हमने देखा कि स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, और जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा न्यूक्लियोफाइल उसी के पास अटैक करेगा, और फाइनली वी गेट द प्रोडक्ट, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। और कार्बोकैटायन क्यों स्टेबल है, ड्यू टू प्लस इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन, दो रीजन आपको बताया। और ऑर्डर क्या बन जाएगा इसमें, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, टर्शियरी इज मोर, secondary is less than that, the primary is less, and methyl is less reactive। में सबसे ज्यादा रिएक्टिव टर्शियरी है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ऑर्डर आपका आ गया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर आपका देखा जाए सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका टर्शियरी है, फिर उससे कम सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल, ये आ गया। अब ये तो था हमारा सिंपल रिएक्टिविटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर, जो अगर देखें जो आपके मिथाइल हैलाइड्स हैं उनके बेसिस पे। लेकिन अगर इनमें सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आ जाए तो, जैसे आपके पास कोई भी कार्बन चेन है, ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, दूसरा भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अब इसमें देखो, ये SN2 मैकेनिज्म के केस में देखें तो SN2 में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, SN1 में कौन सा होगा, this one is the primary, this is also primary, but methyl group is near to the alkyl halogen। जितने नजदीक हैलोजन के बल्कि ग्रुप आते जाएंगे ब्रांच में, वो कम रिएक्टिव होगा SN2 में। तो ये भी आपके पास क्या है, फर्स्ट और ये सेकंड है, तो सेकंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN2। अगर हम SN2 में देखें तो आपके पास सेकंड मोर रिएक्टिव है देन फर्स्ट इज लेस। लेकिन अगर SN1 में इसी को देखें तो फर्स्ट ज्यादा रिएक्टिव है, सेकंड कम है। ये आपने देखना है जब आपका सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाए, जितने पास अगर हैलोजन के अगर अल्काइल ग्रुप आ जाए वो स्टेरिक इंडेक्स शो करेगा और रिएक्टिविटी को कम कर देगा टुवर्ड SN2, और अगर जितने पास अगर अल्काइल ग्रुप है हैलोजन के और SN1 के कंपैरिजन देखें तो वो मोर रिएक्टिव होगा, क्योंकि स्टेबल कार्बोकैटायन वही बनाए। ठीक है, तो ये आपके पास था रिएक्टिविटी सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और दीज आर द SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी आपकी। नेक्स्ट सेक्शन हम इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।